فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ اس نے تمہارے نفسوں سے ہی تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، اور پھر اس نے تمہارے نفسوں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کی طرف سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان مودت اور محبت کو جو ہے وہ پیدا کر دیا۔ یقیناً اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ حضرات گرامی قدر، معزز سامعین، معززات ماؤں اور بہنوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں نکاح کے بنیادی مقاصد جو ہیں ان کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور پھر ان مقاصد کے حصول کے لیے کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اس سلسلے میں ہم نے بات کا آغاز کیا تھا۔ وہیں سے اپنی بات کو دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ ازدواجی زندگی کی کامیابی کے لیے بنیادی اور رہنما اور عظیم اصول کون سے ہیں؟ کون سے وہ طریقے ہیں، کون سی وہ چیزیں ہیں جنہیں استعمال اور اختیار کرتے ہوئے انسان جو ہے وہ اپنی ازدواجی زندگی کو کامیاب بنا سکتا ہے؟ اس میں بہت ساری باتیں ذکر کی جا سکتی ہیں، لیکن اگر ان کو خلاصے کے طور پر چند نمایاں چیزوں کی شکل میں ہم ذکر کرنا چاہیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے بنیادی طور پر 6 اصول ہیں۔ نمبر 1، پچھلے جمعہ میں جو آخر میں اشارہ کیا تھا وہی بنیادی اصول ہے کہ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے بیوی نیک ہو، شوہر جو ہے وہ نیک ہو، رشتہ جو ہے وہ نیک بچے کا اور نیک بچی کا انتخاب کیجیے۔ آپ نے فرمایا تھا تنکح المرأة لأربع، 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے: مال کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، اور حسن و جمال کی وجہ سے، اور دین کی وجہ سے۔ فاظفر بذات الدین، دین والی عورت کو جو ہے وہ اختیار کرو۔ یہ سب سے بنیادی اور اساسی اصول ہے۔ اگر انسان کے مطمع نظر اور پیش نظر نیک رشتہ ہے، والدین بھی چاہتے ہیں اور شادی کرنے والا بچہ اور بچی بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرا ساتھی جو ہے وہ دوسرا نیک ہو، مجھے نیک شوہر ملے، مجھے نیک بیوی ملے۔ فرمایا کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اس سے زیادہ بہترین اصول کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بخیر ما یکنز، لوگوں میں تمہیں یہ نہ بتلاؤں کہ سب سے زیادہ جس چیز کو دنیا میں خزانہ کیا جاتا ہے ان میں سے سب سے بہترین خزانہ اور جمع کرنے والی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ المرأۃ الصالحہ، نیک عورت۔ کائنات میں انسان سونا چاندی جمع کرتا ہے، ڈالر جمع کرتا ہے، زمینیں خریدتا ہے، جاگیریں خریدتا ہے، دنیا میں کامیابی کے لیے اور اپنے لیے وہ بہترین خزانہ سمجھتا ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں میں تمہیں بہترین خزانہ بتلاتا ہوں، کائنات کا سب سے بہترین خزانہ جو ہے وہ نیک عورت ہے۔ کون سی نیک عورت؟ اذا نظر الیہا سرتہ، جب انسان اپنے گھر والوں کو دیکھے تو خوش ہو جائے، طبیعت میں سکون مل جائے، راحت مل جائے۔ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، جب انسان کوئی اسے بات کہہ دے تو وہ فوراً تعمیل کر دے۔
وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، اور جب شوہر گھر میں موجود نہ ہو تو گھر والی جو ہے وہ مال و دولت کی، اپنے گھر کی اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو۔ فرمایا یہ نیک عورت کائنات کا سب سے بہترین خزانہ ہے۔ یہاں پہ میں اپنے سامعین کو مخاطب کروں گا، ہم اہل حدیث بھی ہیں اور اہل سنت بھی ہیں۔ بہت سے ہمارے بھائی اپنے آپ کو اہل سنت کہلواتے ہیں، بہت سے بھائی اہل حدیث کہلواتے ہیں۔ لفظوں میں فرق ہے وگرنہ معنی میں کوئی فرق نہیں۔ اہل سنت کا مطلب ہے سنت کو ماننے والے، اہل حدیث کا مطلب ہے حدیث کو ماننے والے، اور محدثین کے نزدیک سنت اور حدیث میں کوئی فرق نہیں، دونوں کا ایک ہی معنی۔ ہمارے نزدیک اہل حدیثوں کے نزدیک حدیثیں صرف 3 ہیں۔ ایک اونچی آواز میں آمین کہنی چاہیے، ایک پاؤں کے ساتھ پاؤں جوڑنا چاہیے، ایک رفع دین کرنا چاہیے۔ یہ 3 حدیثیں ہیں، ان پہ جتنا زور لگا سکتے ہیں لگا لو۔ اور سنیوں کے نزدیک بھی بہت ساری سنتیں موجود ہیں، لیکن نمایاں طور پہ ٹوپی کے بغیر نماز نہیں پڑھنی، ہاتھ جو ہے وہ ناک کے نیچے باندھنے ہیں، پاؤں کے ساتھ پاؤں نہیں جوڑنا چاہیے، وہ جوڑے تو پھر پیچھے کر لو، کندھے کے ساتھ کندھا لگ جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن سنت یہ ہے کہ پاؤں نہیں جوڑنا۔ اور بھی کچھ ہوں گی، لیکن ان چیزوں کے اوپر اتنا ہم زور دیتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ تصور نہیں کر سکتا کہ کیا صرف سنتیں یہی رہ گئی ہیں، حدیثیں صرف یہی رہ گئی ہیں۔ اب میں دونوں گروہوں کو مخاطب ہوں۔ یہ بھی حدیث ہے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور یہ بھی سنت ہے۔ الا اخبرکم بخیر ما یکنز، لوگوں کائنات کا تمہیں سب سے بہترین خزانہ نہ بتلاؤں؟ المرأۃ الصالحہ، نیک عورت جو ہے وہ کائنات کا سب سے بہترین خزانہ ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہ آپ کی حدیث نہیں ہے؟ یہ آپ کی سنت نہیں ہے؟ یہاں پہ ہم کیا کہتے ہیں؟ بہترین خزانہ خوبصورت عورت، بہترین خزانہ مالدار عورت، وہ عورت جو بہت زیادہ جہیز لے کر آئے، ہمارے تمام مطالبات جو ہے وہ تسلیم کر لے، یہ بہترین خزانہ۔ اور لڑکی والے سمجھتے ہیں بہترین خزانہ لڑکا جو ہے وہ جاب کرتا ہو، اچھی جاب ہو، چاہے نشئی کیوں نہ ہو، جواریہ ہی کیوں نہ ہو، شرابیہ ہی کیوں نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں، جاب اچھی ہونی چاہیے، یہ بہترین خزانہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لوگوں بہترین خزانہ میں تمہیں بتلاتا ہوں، کائنات کا خزانہ جو ہے وہ نیک عورت ہے۔ جب ہم یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی سری مخالفت کرتے ہیں تو کامیاب زندگی کے بندھن یہیں پہ ختم ہو جاتے ہیں، یہیں پہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ انسان چاہتا ہے میں گھر جاؤں تو میں اس کی طرف دیکھوں تو مجھے سکون ملے، لیکن مال و دولت جس جہیز کی بنا پر آپ نے شادی کی ہے وہ احسانات بتلاتے ہیں کہ نہیں، اب آپ کی خوش ہونے کی باری نہیں، خوش تو ہم ہونا چاہتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہمیں خوش کریں۔ وہاں پہ راحتیں نہیں ملتی ہیں، وہاں پہ سکون نہیں ملتا۔ جہاں پہ خواہشیں یہ ہوتی ہیں کہ جات ملنی چاہیے، وہاں پہ یہ نیک عورت جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ نیک عورت نیکی کے کاموں سے بنتی ہے، حسن و جمال سے نہیں بنتی۔ نیک عورت جو ہے وہ مال و دولت سے نہیں بنتی، نیک عورت جہیز کے ساتھ نہیں بنتی، اور نیک بچہ جو ہے وہ جاب کے ساتھ نہیں بنتا۔ نیک بچہ جو لمبا اونچا قد کا ہو، چوڑے منہ والا ہو، خوبصورت منہ والا ہو، اس سے نیک نہیں بنتا۔ نیکی جیسی تو اویس کرنی رضی اللہ رحمہ اللہ تبارک و تعالی، ان کو بھی نیکی مل جاتی ہے، جو کہتے تھے شکل کے اعتبار سے کوئی زیادہ خوبصورت نہیں تھے۔ نیکی تو بلال حبشی کو بھی مل جاتی ہے، جو بالکل پیور کالے رنگ کے تھے۔ نیکی تو جلیبیب کو بھی مل جاتی ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پوچھتے ہیں جلیبیب کہاں ہے؟
जिसके बारे में आप खुद कहते हैं, लोगों आना मिन जुलैबीब व जुलैबीब मिन्नी, मैं जुलैबीब से हूं और जुलैबीब मुझसे है। वो जुलैबीब जिसको अपने हाथों पे उठाकर प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम कब्र में उतारते हैं, शक्लो सूरत के अच्छे नहीं हैं। आपने फरमाया जुलैबीब शादी कर लो। कहा या रसूलल्लाह मुझे कौन रिश्ता देगा, मुझे रिश्ता किसने देना है, मेरी शक्लो सूरत देखकर लोग तो पीछे हट जाते हैं। आपने उसके रिश्ते के लिए खुद बात की और कहा जुलैबीब जाओ फलां घर वाले को जाके कहो मुझे रिश्ता चाहिए। घर वाले इनकार कर दिया, नहीं दे सकते, हमारी बेटी के लिए जुलैबीब रह गया है। बेटी ने आवाज सुन ली, कहा ये ना देखो कि ये आने वाला कौन है, ये रिश्ता मांगने वाला कौन है, इसे देखो पीछे से भेजा किसने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बुरे आदमी का इंतखाब किया है? यकीनन अच्छे आदमी का इंतखाब किया है। और लड़की जो है वो शादी पे रजामंद हो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने सारी जिंदगी खैर और बरकत से भर। कामयाब जिंदगी का बुनियादी उसूल नेक रिश्ता है, माली रिश्ता नहीं है, हुस्न जमाल का रिश्ता नहीं है। ये दुनिया की चीजें हैं, मिल जाए ले लो, शरीयत मना नहीं करती है, लेकिन असल चीज जो है वो नेकी है। जो औरत नेक नहीं है वो उसके अंदर हजारों औसाफ हों, वो औरत जो है वो शौहर को खुश नहीं कर सकती। शौहर नेक नहीं है, उसके अंदर हजारों खूबियां हों, वो अपनी बीवी को कभी खुश नहीं कर सकता है। ये याद रख लीजिए। यहां पे मैं पते की बात बतला रहा हूं, वालिदैन से भी गुजारिश कर रहा हूं, माँ और बाप से भी गुजारिश कर रहा हूं और बेटों और बेटियों से भी गुजारिश कर रहा हूं। आज हम अपनी आना की खातिर कितने ही मुनासिब रिश्ते आते हैं उन्हें ठकरा देते हैं। वालिदैन भी ऐसा करते हैं और बस औकात बेटा और बेटी भी ऐसा करते हैं। ये रिश्ता मुनासिब नहीं, मैंने नहीं करना, ये रिश्ता मुनासिब नहीं, मैंने नहीं करना, ये मुनासिब नहीं, हमने नहीं करना। नतीजतन देर होती चली जाती है और रिश्ता मिलना मुश्किल हो जाता है, बस औकात नामुमकिन हो जाता है और फिर यहां से बिगाड़ और फसाद और खराबियां जो है वो पैदा होना शुरू हो जाती है। और वो उसी हदीस का नतीजा है, लोगो इज़ा अताकुम मन तर्दौना दीनहु व खुलुकहु फज़व्विजूहु फ़इन लम तफ़अलू तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन अरीज़। लोगो तुम्हारे पास अच्छा मुनासिब रिश्ता आ जाए, दीन अच्छा है, अखलाक अच्छा है, फौरन शादी कर दो। अगर तुम नहीं करोगे तो जमीन में लंबा चौड़ा फसाद जो है वो पैदा हो जाएगा। यह भी सुन्नत है, यह भी हदीस है। जैसे पांव के साथ पांव मिलाना सुन्नत है, उसी तरह आपकी यह भी हदीस है। लोगों अगर दीन वाला और अखलाक वाला रिश्ता मिल जाए तो शादी कर दो, वगरना दुनिया में, कायनात में, मुआशरे में, खानदान में, आपके घर बार में फितना और फसाद फैल जाएगा। इस हदीस को और इस सुन्नत को हम मानने के लिए तैयार। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ईमान वालों दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाए। यह भी सुन्नत इख्तियार करो और यह भी हदीस जो है वो इख्तियार करो। बुनियादी सबब कामयाबी का यही है, लोगों रिश्ता नेक ले, रिश्ता नेक ले लोगे सब कुछ मिल जाएगा। अगर बीवी शौहर साबर और शाकर हैं, इबादत गुजार हैं, अल्लाह पे तवक्कुल और एतमाद करने वाले हैं, आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला अपने खजानों से तमाम कमियां और कोताहियां जो है वो पूरी कर देने वाले। और अगर ऐसा नहीं है, न बीवी साबर शाकर है, न शौहर साबर शाकर है, न वो नेक है, न वो नेक है, तो फिर दुनिया का मालो दौलत और दुनिया के हुस्न जमाल इंसान की हाजात को पूरा नहीं करते, कभी नहीं करते। एक सबब कामयाब जिंदगी के लिए जरूरी है कि रिश्ता नेक तलाश करो। मुझे याद आ गया, जरा देखिए, खलीफतुल मुस्लिमीन मशहूर वाकया है। रातों को गश्त करते हैं और एक दरवाजे के पास से गुजरते हैं तो आवाज आती है, बेटी दूध में पानी मिला दो। अम्मा खलीफतुल मुस्लिमीन ने मना कर रखा है। बेटा इस वक्त कौन देख रहा है, खलीफतुल मुस्लिमीन अपने महल में सोए हुए होंगे। कहा अम्मा खलीफतुल मुस्लिमीन तो सोए हुए होंगे, लेकिन खलीफतुल मुस्लिमीन का जो रब है वो तो नहीं सोता है, वो तो देख रहा है, वो सुन भी रहा है।
खलीफतुल मुस्लिमीन ने घर के ऊपर निशान लगा दिया। सुबह को जाकर बेटी का रिश्ता तलब कर लिया। सेक्रेटरी जाओ उस घर वालों से कहो खलीफतुल मुस्लिमीन अपने बेटे के लिए तुम्हारी बेटी का रिश्ता चाहता है। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका रोब और दबदबा जाहो जलाल न सिर्फ उम्मत मुसलमान मानती है बल्कि काफिर भी मानते हैं, और वो डंके की चोट कहते हैं कि कायनात में अगर एक उमर और आ जाता तो दुनिया में इस्लाम के अलावा दूसरा मजहब और दूसरा दीन हमें कोई नजर ही ना आता। वो उमर जौन सा रिश्ता लेना चाहे ले सकता है, जिस लड़की पे इशारा करे वहां से रिश्ता जो है वो आ सकता है। लेकिन कुर्बान जाइए, लड़की नहीं देखी, किस रंग की है, कितनी पढ़ी लिखी है, कद कितना है, जहेज कितना दे सकती है, एक शर्त भी नहीं देखी। क्या देखा? अकीदा देखा, उसके नजरियात देखे। इतना ऊंचा नजरिया कि अम्मा खलीफतुल मुस्लिमीन तो नहीं देखता लेकिन उनका रब तो देखता है। फरमाया इतना अजीम रिश्ता जो है वो मेरे बेटे के लिए तो बहुत बड़ी सआदत हो जाएगी। इसका इंतखाब किया। अल्लाह तबारक व तआला ने घराने के अंदर बरकत ही बरकत पैदा कर। मालूम है इसी की नस्ल से अल्लाह तबारक व तआला ने उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह उनको जो है वो पैदा फरमा। इसी जोड़े से है कामयाबी। उमर ने कोई खूबसूरती नहीं देखी, कोई जहेज नहीं देखा, कोई मालो दौलत नहीं देखा, कोई पढ़ा लिखा खानदान नहीं देखा, सिर्फ दीन को देखा। अल्लाह ने बरकत ही बरकत पैदा कर। दूसरा वाकया भी मौजूद है। एक चौधरी, लंबरदार, मालदार आदमी, बागों का मालिक अपने माली से कहता है, गुलाम से कहता है एक फल लेकर आओ मीठा सा, जी कर रहा है फल खाने को। लेकर आया, फल खिलाया, खट्टा निकला। मालिक ने नाराजगी का इजहार किया, कहा और लेकर आओ, मीठा लेकर आओ यार। वो दूसरा लेकर आया, वो भी खट्टा निकला। मालिक जरा ज्यादा गुस्से में आ गया, कहा मीठा लेकर आओ। तीसरा लेकर आया, वो भी खट्टा निकला। मालिक जो है वो आपे से बाहर हो। जो सुना सकता था गुलाम को और बड़े मालिक को सुना दी, जो मुंह में आया कह दिया। माली जो है वो बड़े अदब से गुजारिश करता है, हजरत आपने मुझे अपने बाग में राखा रखा है, चाखा नहीं रखा। मैं आपके बाग का राखा हूं, चाखा नहीं हूं। मैंने कभी भी आपके बाग से एक दाना जो है वो फल का कभी चक्कर नहीं देखा है। ये मीठा है या खट्टा मुझे क्या मालूम, मीठा क्या होता है, खट्टा क्या होता है। मैं तो आपके बाग की हिफाजत करता हूं। शायद उस वक्त उस मालिक के रोंगटे खड़े हो गए, दिल में धड़कने जो है वो तेज हो गई। उसे जमीन के पांव के नीचे से जमीन सिरकती हुई नजर आई। क्या दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं? इतना बड़ा बाग मैंने उसके हवाले कर दिया, 6 महीने साल गुजर गए और उसमें से एक दाना भी उठाकर नहीं खाया। भागा, घर में पहुंचा, बीवी से कहने लगा, बेगम खुश हो जाओ, मैंने तेरी बेटी के लिए रिश्ता चुन लिया है। कहा कौन से चौधरी का लड़का है? कहा चौधरी नहीं, लंबरदार नहीं, सरदार नहीं, बल्कि हमारे बाग का जो माली है, गुलाम है, उसको मैंने तेरी बेटी के लिए रिश्ते के तौर पर मुंतखब कर लिया। कहा क्यों? कहा इस वजह से, उसकी ईमानदारी देख, उसकी दयानतदारी को देखकर, उसके ईमान को देखकर। फरमाया रिश्ता कायम हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने बेटा अता फरमाया। दुनिया उसको इमामुल मुहद्दिसीन, इमामुल फुकहा, इमामुल अजवदीन और पता नहीं जो लक़ब आप देना चाहें दे सकते हैं। उस बंदे के अंदर वो सारी सिफात मौजूद थी जिसे कायनात के लोग जो है अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह रहमतन वासिया इस नाम से याद थी। मुजाहिदीन के सरदार, फुकहा के सरदार, इल्म के सरदार, हदीस के सरदार, जूदो सखा के सरदार, अखलाक के सरदार, जो नेकी आप कह सकते हैं इस बंदे के अंदर मौजूद। कहां से आई है? बाप नेक है बेटी का, अपनी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता मुंतखब करना चाहता है। शौहर जो है वो नेक है,
दोनों का रिश्ता जो है वो मिलता है तो घर में खैर और बरकत ही बरकत जो है वो पैदा होती। अब कोई समझ आई बात कि खूबसूरती और नेकी में कितना फर्क है, मालो दौलत और नेकी में कितना फर्क है, जाब में और जहेज में और नेकी में कितना फर्क है। आज हमारे खानदानों में तबाही और बर्बादी का बुनियादी सबब यही है। हम सारे असबाब देखने के लिए तैयार हैं, लेकिन रिश्ता नेक जो है वो देखने के लिए तैयार, वो कोई बात नहीं, नेक बन ही जाएगा। नमाज नहीं पढ़ता, पढ़ ही लेगा ना, दाढ़ी देखी रख लेगा ना, सारे काम हो जाएंगे, लेकिन दुनियादारी के काम नहीं होते। इसलिए हम पहले जो है वो उसको देखने की कोशिश करते। नंबर 1, ये कामयाबी का बुनियादी उसूल है। नंबर 2, इंसान जो है वो कामयाबी के लिए अपने मुआहदों की पासदारी करे, अपने मुआहदों की, अपने वादों की पासदारी करे। कुरान मजीद में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, ऐ ईमानदार लोगों अपने वादे पूरे किया करो। कौन से वादे? जहां भी वादे करो। ये मियां बीवी जब रिश्ता ज़वाज में मुंसलिक होते हैं तो वहां पे अहद किया जाता है, अल्लाह का कलमा पढ़ा जाता है, कुरान की तिलावत की जाती है, और एक बंदे का दूसरे बंदी के साथ हाथ जो है वो मिला दिया जाता है और कहा जाता है, बेटा ये 20 साल 22 साल 25 साल की खातून दोशीजा, ये हमने परवरिश की है, खिलाया पिलाया है, तरबियत की है, जो हमसे हो सका हमने कर दिया है। आज हमने इस बेटी का हाथ अपने हाथ से निकालकर आपके हाथ में दे दिया। आज के बाद मैं जिम्मेदार नहीं, तुम जिम्मेदार हो। और वो हाथ थाम लेता है और कहता है, बजान ठीक है, आज से आपकी जिम्मेदारियां खत्म हो गई, आज के बाद मेरी जिम्मेदारियां खत्म हो गई। याद है शादी के वक्त यही मकसद था, बड़े पैसे खर्च किए इस मकसद को हासिल करने के लिए। 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया सिर्फ खाने पे खर्च कर दिया, जोड़ों पे, लिबासों पे, जेवर पे और दूसरे फंक्शनों पे वो अलग हैं अखराजात। किस मकसद के लिए? कि आज के बाद ये बेटी जो है वो आपके घर में नहीं रहेगी, आज के बाद मेरे घर में रहेगी। इसकी जिम्मेदारियां आज के बाद आपके सर नहीं है, मेरे सर पे हैं। ये मुआहदा किया है। क्या शादी के बाद इस मुआहदे को याद रखा जाता है? बेटा अहद करता है, मैं तेरी हिफाजत करूंगा, मैं तेरा साथ दूंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तेरे नाना नस्के का मैं जिम्मेदार हूं, तेरे लिबास का मैं जिम्मेदार हूं, तेरे घर का मैं जिम्मेदार हूं, तेरी इज्जत का मैं मुहाफिज हूं। औरत भी कहती है, कोई बात नहीं, मैं आपकी फरमा बरदार हूं, मैं आपकी ताबेदार हूं, आपके साथ अहद करती हूं, मेरा मरना जीना आपके साथ है। दोनों ने अहद किया है। और आज 2 दिन नहीं गुजरे, इंसान देख नहीं सकता, अपनी शक्ल गायब करो, बीवी उसे कहती शक्ल गायब करो, तो कामयाब जिंदगी कहां से मिलेगी? कुरान कहता है, ईमानदार लोगों अपने वादे पूरे किया करो। ये वादा किया है आपने खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर फरमाया था, आखिरी पैगामों में से आपके पैगामात हैं, फत्तकुल्लाह फिन निसा, लोगों अल्लाह से औरतों के बारे में डर के रहना। फइन्नकुम अखज़्तुमूहुन्ना बिकलिमतिल्लाह, आपने उनको अल्लाह के कलमा के साथ जो है वो लिया है, अल्लाह का नाम लेकर लिया है। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, लोगों अपने रिश्तेदारी के मामले में डरते रहना। ये वादा हम क्यों भूल जाते हैं? जब इंसान भूल जाता है तो इसी वजह से इंसान जो है वो इतने अजीम रिश्ते को जो है वो अपने हाथों से उसकी जड़ें जो है वो काटना शुरू कर देते। औरत भी इसमें शामिल होती है, शौहर भी इसमें शामिल होता है, दोनों काटते हैं। दोनों के काटने के साथ जो है ये रिश्ता जो है वो टूट जाता है। फरमाया अगर आपको ये अहद याद हो तो इंसान कभी ना भूले। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी कई जगह पे कहा, वकैफ़ ताख़ुज़ूनहु वक़द अफ़ज़ा बअज़ुकुम इला बअज़िन व अख़ज़ना मिनकुम मीसाक़न ग़लीज़ा, तुम हक महर का मुतालबा क्यों करते हो, मुआफ क्यों करवाते हो? शौहर हक महर देता, इंशाअल्लाह मैं गुफ्तगू करूंगा हक महर पे भी, दे देते हो, फिर बाद में कहते हो मुझे दे दो, माफ कर दो, अंगूठा लगा दो, क्यों लेते हो? तुमने औरत को अपने लिए हलाल नहीं किया,
अब तुम्हें हया नहीं आता कि इतना बड़ा मुआमला हो जाने के बाद चंद रुपए जो है उसके लिए माफी के लिए जो है वो आगे दरखास्त करते हो। वाखज़ना मिनकुम मीसाकन गलीज़ा, उन औरतों ने तुमसे बड़ा मजबूत और बड़ा पुख्ता अहद लिया था कि मैं तुम्हारी इज्जत की हिफाजत, तुम मेरी इज्जत की हिफाजत करने वाले हो। इस अहद को क्यों भूल जाते? आज हम इस अहद को भूल जाते हैं, जिसकी वजह से मामले जो है वो गड़बड़ हो जाते हैं। इस अहद के मुकाबले में छोटी छोटी लड़ाइयां कोई हैसियत ही नहीं रखती, कोई हैसियत ही नहीं रखती। इंसान अगर अपने वादे को याद रखे तो मामूली मामले को सरफे नजर कर दे, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, हमारा मकसद बड़ा अजीम है, हमारा इरादा बड़ा अजीम है, हमारी मंजिल बड़ी अजीम है, लिहाजा उसके मुकाबले में ये लड़ाई झगड़ा कोई हैसियत नहीं। क्यों लड़ती हो, छोड़ो इसको, बात क्या चाहिए, ये चाहिए, ये ले लो। आपने फरमाया था लोगों मैं तुम्हें जन्नती औरत ना दिखलाऊं? सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह क्यों नहीं? फरमाया शौहर से मोहब्बत करने वाली, औलाद वाली, और फरमाया अगर उसका शौहर किसी वजह से नाराज हो जाए तो वो घर छोड़ के ना भागे, वो लड़ाई झगड़े को तूल न दे, अपने घर की बातें बाहर ना नशर करे, बल्कि फौरन अपने शौहर के पास जाए और कहे मेरा हाथ आपके हाथ में है, मेरे वालिदैन ने भी दिया और मैं भी देती हूं, मैं यहां से उस वक्त तक उठकर नहीं जाऊंगी जब तक आप राजी नहीं हो जाते। क्या मजाल है कि मामला खराब हो जाए। शौहर घर बसाना चाहे, बीवी घर बसना चाहे, तो कैसे मामला खराब होते हैं? मामले तभी खराब होते हैं जब हम बसाना ही नहीं चाहते, हमें मकासद भूल जाते हैं और नई चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं और हम नए ख्वाब जो है वो सजाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से पुरानी जिंदगी जो है वो तबाही और बर्बादी का जो है वो शिकार हो जाती। दो चीजें। तीसरी चीज, वक्त जो है वो पूरा हो गया है, बस उसका उन्वान में जिक्र करके अपनी बात जो है वो खत्म करता हूं, इंशाअल्लाह फिर आगे यहीं से शुरू करेंगे। तीसरी चीज, शादी का मकसद क्या है? यही मकसद अगर जहन में रखा जाए, यही कामयाबी की जमानत। लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, लोगों हमने तुम्हारी शादियां इसलिए की हैं तुम सुकून हासिल करो, और तुम्हारे दरमियान हमने मोहब्बत और उल्फत का रिश्ता कायम कर दिया है। जब हम इस सुकून को भूल जाते हैं, इस मुवद्दत और मोहब्बत के रिश्ते को और उल्फत के रिश्ते को भूल जाते हैं, तो उस वक्त जो है वो तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाते हैं। इस मौजू पे आगे बहुत सारी बातें इंशाअल्लाह जिक्र करेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमारी अज़वाजी जिंदगी को खैर व बरकत से भरपूर फरमा दे। हमारे दरमियान जो दूरियां हैं, बुग़्ज़ है, हसद है, नफरत है, कीना है, अल्लाह करीम उसको दूर फरमा दे। हमें प्यार, मोहब्बत और इत्तिफाक और इत्तिहाद के साथ जिंदगी बसर करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।